You have done Khatron Ke Khiladi for the third time now, but you've never been on Big Boss. अबे चल चल. That's not a show that I think I can add any value. इंडस्ट्री में टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है या नेटवर्किंग? Yeah. What is your first bike or car story? मैंने पहली कार अपने पैसों से ली थी, लैंसर. Check this out. उसके बोनट में से इतना बड़ा रॉड फाड़ करके निकल गया बाहर. Damn. इतनी बड़ी गाड़ी अगर फट भी गई तो तेरा एक जग का पानी से क्या होगा भाई? थोड़ा ज्यादा पानी लिया, थोड़ा फायर एक्सटिंग्विशर लिया कि अगर फट गई, जो मैं बोल रहा हूँ सच हो गया तो एक जग से क्या हो जाएगा? Where is अनुष्का? कब है? कोई नहीं मिली. Hello and welcome to RVCJ Movies. This is Chetna Suthar and today we have with us an actor, host, dancer, reality show star, none other than Ritvik Dhanjani. Thank you so much for having me. When I was, researching about you on Instagram, on social media, YouTube, everywhere, you have done Khatron Ke Khiladi for the third time now, but you've never been on Big Boss. I was like, what? Because we have seen you from a decade, Pavitra, super dancer, mein Jhalak Dekh La Aaja mein. Is this a conscious decision? Yep. Why? That's not a show that I think I can add any value to, or neither the show can add any value, because it's not something that I... But you're a fun personality like that. Sure, I would love to be fun off camera and do other things, but not on that platform, is because I think I don't think I'm the right fit for the show. Very simple. I don't think I don't think the synergies of the energy of that show matches the energy of who I am. These are two very different baskets that you can't really sort of overlap. New thing to know about you. Yeah, absolutely. I mean, I can't. It's a great show. It's a great platform for a lot of people, and it has done wonders for so many people. And I'm really happy for all of them. But it's just that कि वो मैं as a viewer also मैं कभी ज़्यादा देख नहीं पाया, मैं कभी connect नहीं कर पाया. Okay. तो probably that's also the reason where I'm like कि मैं जब वहाँ पर रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता. So it's not something that I'd like to. Future में decision change होगा? No. Really? इतने सालों में नहीं हुआ तो अभी कहाँ से होगा ना. And also, when I was going through you, you have made... You were going through me when? On social media. Okay. On social media. Thank you. I was stalking you. Sweet. Thank you. It was very good to you made 24 Ganpatis last year. Guys, for who don't know, he makes Ganpati Murtis, idols. Yeah, I did. I mean, not just me. We were a bunch of people. All of us put together made 24 murtis this year. Wow, Yes. that's so... Like, I'm sure you have artistic hands because why not? But was it... How it started? Was it like a spiritual awakening कि मुझे गणपति बनाना है? Or how it started? No, there was no spiritual awakening as such. There was just a little bit of awareness that came in. क्योंकि मैं उसके पहले तक, I think I've been celebrating Ganesh Chaturthi for almost 25 years. Yeah. And I've been making Bappa for almost 9 years now. 8 years. 8 or 9 years. So उसके पहले तक जब मैं सेलिब्रेट करता था तो it used to always be like कि मैं बाहर गया, जैसे सब POP की मूर्ति लेकर आते हैं, मैं भी मूर्ति लेकर आता था, and we used to sort of celebrate it. But जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा समझा, 9 years I've been making Ganpati, and I think there was no spiritual awakening or anything as such. It's just that I started realizing how atrocious it is to have a POP murti, what it does to the environment, what it does to the ocean, what it does to the marine life, and to us in return. Yeah. So I think I didn't want to be a part of it. So and that was one day my friend Rakesh Bapat, who's also my teacher, he used to make Bappa अपने हाथ से, और एक दिन मैंने उसको बोला भाई मुझे भी सिखा दे. And he's like ठीक है आ जा भाई बैठ जा. तो वो बनाता गया, मैं उसको देखते देखते सीखता गया, and then I was like this is the You most started enjoying it. enjoying it. मतलब it's been the most therapeutic experience of my life. And I realized कि यार जब मुझे इतनी खुशी हो रही है इसमें, then why not share this with everybody. So उस साल से फिर मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया कि guys सब आ जाओ, मैं सबकी मूर्तियाँ बनाने में हेल्प कर दूंगा, but just come and make this because I didn't want to keep this experience to just myself, because ये इतना beautiful, soulful, therapeutic, cathartic experience है अपने आप में, that I want the world to experience it at least once. कि एक बार अपने हाथ से अपनी बप्पा की मूर्ति बनाओ, it'll change you as a person. It will. I'm sure because making Ganpati Murtis and Mumbai का माहौल ही अलग होता है गणपति Correct. के time. Yeah. Yeah. It in itself is a very spiritual awakening It for is. whole It Mumbai, is. I'm sure. I agree. It is. And we see you a lot in stadiums recently. Cricket. I mean, yeah, we own a bunch of teams in different leagues. Cricket is something that I'm really, really fond of.
And yeah, I'm very passionate about the game as well. Who's your favorite player? Man, currently I am in love with Vaibhav Suryavanshi, guys. है ना? That boy is phenomenal. मतलब I look forward to seeing him play. But he's a prodigy in the making. मतलब हम सबके सामने we're actually seeing a legend, a genius being made, and I really hope that जो पृथ्वी शॉ के साथ हुआ था, you know, he was such a great talent, but something went off the rails. वो मतलब he was not able to sort of capitalize on it, but he's still a phenomenal cricketer. And because Vaibhav was also really young, I really hope that ये जो the glamour side of cricket, I hope that doesn't engulf him too early, Yeah. because he's a talent that we can't miss out on. He's definitely someone we should not be missing out on. And social media harms you in one way or not. Well, yes, I mean, if you're not careful, it does. ये तो young talents है. What is your all-time favorite cricketer? I mean, the god, Sachin Tendulkar, Tendulkar. absolutely. And then Virat, of course, like he's, नहीं वो विराट लड़कियों का भी favorite है. I'm sure Virat and me share the same birthday, so absolutely, man, the same Scorpion Oh, boy. God. I love Virat. Where is the Anushka? I don't have one. I don't have one, and yeah, I hope I get one. I hope I do. Okay, and some boys are very critical and religious about their first bike or first car. Yeah. What is your first bike or car story? Because boys are very how we I'm girls very- take care of our makeup. Oh man. They take care of कि इतना भी scratch नहीं आना चाहिए. यार मेरी पहली बाइक की story is a bit controversial, not controversial, but a bit. And we would like to know that. I will tell you. I was all of 16 years old. हम दुबई में थे, और you get a driving license only when you turn 18. Yeah, But you can apply for a license, a bike license when you're 16 yeah, or 17, I think. yeah. I applied for a bike license, और क्योंकि मैं इंडिया में बाइक चलाता था, मुझे वहाँ पर पहले ट्राई में बाइक लाइसेंस मिल गया. हाँ. सो पापा ने कहा कि वो बढ़िया है लाइसेंस. पापा ने जब मैं बाइक का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, पापा वाज हैप्पी. इज लाइक हाँ जा ले ले. व्हेन आई गॉट द लाइसेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक कि अब पापा बाइक लेके तो पापा मतलब वो नहीं लेके दे रहा बेटे. तो मतलब ये तो गलत बात है. ये तो आपने ऐसे मतलब चाबी लगा के छोड़ दिया मेरे को मजा नहीं आ रहा है इस बात में. क्या करूं? तो and then I was like, I was desperate to ride a bike. I don't know, because my mom and dad both are like, in Dubai you're not going to ride a bike. Then I was like, why did you get me a license then if I can't ride a bike? तो तब मुझे याद है, मैं ना थोड़े बहुत इधर उधर से थोड़ा काम करके कुछ पैसे जुगाड़ के एक दोस्त हुआ करता था, दिनेश नाम था. उसके पास एक कोई पुरानी बाइक खड़ी थी, तो मैं उसको पैसे देता था एक हफ्ते की कि भाई मुझसे ये थोड़े से पैसे ले ले, मैंने कमा लिए, मुझे एक हफ्ते के लिए अपनी बाइक चलाने दे. तो मैं छुप छुप के वो बाइक चलाता था. वो हेलमेट में अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के उसमें छुपाता था, ताकि मैं घर पे ना ले जा सकूं, मम्मी को लगे ना कि मेरे पास हेलमेट है. एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू राइड दैट बाइक. और वो बाइक इतनी पुरानी थी वो, कि वो चलते चलते कभी भी बंद हो जाती थी. तो दुबई जैसे शहर में बीच सड़क पे मैं अपने दोस्तों को फोन कर, अरे भाई जरा इधर आ, तेरे को बाइक पे घुमाता हूँ. उसको मैं बुलाता था बाइक पे घुमाने के लिए नहीं, धक्का मारने के लिए, ताकि बाइक चल जाए. क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट के अलावा किक स्टार्ट था नहीं उसमें, तो उसमें सिर्फ धक्का देके चलती थी. तो हर तीसरे दिन मैं अपने दोस्त को बुलाता था, जयू मेरा दोस्त, इधर आ भाई, धक्का दे बाइक को धक्का दे, थोड़ी बाइक चल जाए. सो दैट वाज माय फर्स्ट एवर बाइक स्टोरी. इट्स रियली वो दोस्त है क्या जो धक्का ना दे बाइक को? फिर गया और क्या. इसी काम के लिए तो पाला है उसे. एंड मतलब गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है. 16 साल में इनको लाइसेंस मिल गया था, लेकिन माँ बाप ट्रस्ट नहीं करते. नहीं करते. माँ बाप वाला है कि बाइक नहीं चला सकता तो कुछ भी कर ले, साल भर और रुक जा, गाड़ी चला लेना, बाइक नहीं चला. एंड व्हाट इज योर फर्स्ट कार स्टोरी? पहली कार आपने कौन सी ली? मैंने पहली कार अपने पैसों से ली थी, एक 1998 की लैंसर, मित्सुबिशी लैंसर. और उसकी भी कहानी कुछ ऐसी है. वो भी अपनी मर्जी की मालिक, वो भी खड़ दिमाग, अपना दिमाग था उसका मन करेगा तो चलेगी, नहीं करेगा तो नहीं चलेगी. मैं रोज प्रार्थना करके जाता था कि मैं सेट तक पहुंच जाऊं और टाइम पे पहुंच जाऊं. उसके बाद जब पैकअप होगा, उसके बाद ये गाड़ी कैसे घर आएगी वो देख लिया जाएगा. तो आई रिमेम्बर. और ना बहुत समय तक उस गाड़ी में क्या होता था ना, कि मैं जब गाड़ी चलाऊं तो जैसी बम्प पे चलती थी तो ऐसे कट 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 करके कुछ आवाज आती थी. तो मैं बहुत दिन तक सोचता था क्या है, और दिमाग लगाते. पैसे तो होते नहीं थे कि मैकेनिक के पास ले जाओ, तो फिर मैं खुद ही खोल के कुछ तो आवाज कर रहा है, सब चेक करता था, समझ ही नहीं आता था. फिर आवाज आती थी. फिर एक दिन एक बड़े बम्प पे ऐसे ठाम करके गाड़ी फटी. तो उसका जो बोनट है, उसके बोनट में से इतना बड़ा रॉड फाड़ करके निकल गया बाहर. वो रॉड मुझे आज तक पता नहीं इतना बड़ा रॉड कर क्या रहा था जो बोनट से बाहर आ गया, और उस रॉड का क्या काम था मुझे नहीं पता. और वो क्योंकि मेरे पास लाइक आई सेड पैसे नहीं थे गाड़ी बनाने के लिए, तो वो जो रॉड थी वो वैसी की वैसी ही थी.
कुछ 6-8 महीने तक, और गाड़ी चलते-चलते वो रॉड यूँ घूम रही थी। मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रॉड यूँ चल रही है मेरे साथ। बहुत समय तक चली है वो रॉड, और पूरी दुनिया देख रही है ये क्या है? और उसने बोनट में खड्डा कर दिया अजीब-सा, तो वो मेरी पहली गाड़ी थी, बट आई स्टिल डिडन्ट लेट इट गो। मैंने उसको बहुत समय तक चलाया और कोशिश की कि उसको रखूँ, बट नहीं रख पाया ज़्यादा समय। बट दैट वाज़ माय फर्स्ट कार। I expected a emotional story, but These are quite sexually active story for the cars. yeah. I don't know why the car did that. I have no idea why it did it. सबके कान खड़े हो गए। तो यही कहानी ये थी कि लैंसर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, जो भाई ने अभी बताया कि मेरे को याद है मैं क्लिक निक्सन से शूट करके ओशिवारा की तरफ आ रहा था, और वो JVLR फ्लाईओवर पे ना कंस्ट्रक्शन तो हम मुंबई में आज देख रहे हैं, वहां पर तो सैकड़ों सदियों से चलता रहा है। मेरे को लगा 200-300 साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे। पिछली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन में पत्थर उठाए गए थे आज वहां, भी चल रहा है। वो आज भी चल रहे हैं वहां पे। मेरे को लग रहा है खोदोगे तो आपको एक अलग सिविलाइजेशन मिलेगी वहां। तो वहां पर ना गाड़ी गर्म होती है तो हीट अप हो जाती है, वो ऐसा फिंग करके आपका वो मीटर पहुंच जाता है ऊपर। तो मेरी गाड़ी अचानक से हीट हो गई और फन 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 करके धुआं निकलने लगा उसमें से। ओके। तो अब लॉजिकली इंसान क्या करेगा कि उतरेगा, किसी से हेल्प मांगेगा। या भाई मेरी जेन्युइनली मैं मेरी इतनी, मैं उतरा हूँ गाड़ी से और मतलब फट जाएगी फट जाएगी फट जाएगी, हट जाओ हट जाओ, फट जाएगी फट जाएगी, ये करके। तो आसपास कोई मदद कर लेना है, क्योंकि वो देखे, उन्होंने बोला कि भाई इसी की गाड़ी है, हो सकता है इसी ने बम लगाया हो, यही फाड़ दे। पता नहीं क्या बोल रहा भाई आदमी, और मैं और नया नया ऑडिशन दे के कहीं से निकला हूँ, और तब तो लोग जानते भी नहीं थे, तो किसी ने मदद नहीं की। फिर थोड़ी देर के बाद कोई एक बंदा आया। किसी ने बॉम्ब रखा है। नहीं भाई ऐसा भी हो सकता है, बट कोई एक बंदा है जिसने, जैसे आपने फेविकॉल के डब्बे में पानी लिया था, वो बंदा है अपना, वो मेटल का जग नहीं होता, जग घूमे वाला जग, वो जग में से उसने कहीं से पानी लिया और दूर से ये फच करके मारी उसने गाड़ी पे, ले मार बुझ जाएगी। तो थोड़ी देर मुझे सोचने में लगे कि इतनी बड़ी गाड़ी अगर फट भी गई तो तेरा एक जग का पानी से क्या होगा भाई, थोड़ा ज्यादा पानी लिया, थोड़ा फायर एक्सटिंग्विशर लिया, कि अगर फट गई, जो मैं बोल रहा हूँ सच हो गया तो एक जग से क्या हो जाएगा। फिर उसने बोला कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो कार्बोरेटर खराब हो गया। मैं बोला कार्बोरेटर खराब हो गया। फिर दूसरा एक मैकेनिक आया, उसने बोला भाई आपकी गाड़ी गर्म हो गई है, कुछ नहीं है, कूलेंट खत्म हो गया, इंजन फेल हो जाएगा, आप इसको चलाओ मत। फिर उसको टो करके लेके गए हम। A crazy story, crazy ending. भाई सोचो, एक तो धुआं निकल रहा, डंडा अलग निकल रहा गाड़ी में से, लेकिन हिम्मत मेरी, मैं एक बार नहीं ले गया उसको मैकेनिक, एक बार नहीं। Guts, I would say. और एक और बात बताता हूँ, तब रीजन भी मैं बताता हूँ कि फट जाएगी क्यों बोला मैंने। हाँ। उसके पीछे थॉट है, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था जब हम गाड़ियों में CNG लगा लेते, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता था, महंगा होता था। डीजल तो फिर भी सस्ता, लेकिन फिर भी महंगा। तो मैं शुरू में मैंने तिगड़म लगाई सिंधी दिमाग, मतलब सबसे सस्ता है CNG की गैस की टंकी लगा दो। तो मैंने CNG की गैस की टंकी भर दी थी गाड़ी में, डिक्की में कोई जगह होती नहीं थी। तो जो पहला थॉट आया धुआं, मैंने कनेक्ट कर लिया कि आग मतलब चिंगारी मतलब पीछे CNG, फटेंगे तो सब फटेंगे आसपास, मतलब ये वो जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसा वाला गैस ब्लास्ट होगा। Connecting dots. हाँ, तो इसीलिए मैं डर गया थोड़ा कि फट जाएगी। Crazy story. I must tell you, crazy story. I really expected कि मेरी पहली कार थी, मैंने ऐसे लिया वैसे लिया, but नहीं this भाई, is the craziest story ever. वो लेने भी गया था मैं, जिस अंकल से, ऑर्लेम में एक अंकल रहते थे, वो गाड़ी मुझे मिली कैसे थी, फेसबुक से। क्या? हाँ, फेसबुक पे मैंने किसी का स्टेटस देखा था Okay. कि स्पोर्ट्स मित्सुबिशी लैंसर सेलिंग 1 लाख रुपीस। तो मैंने स्पोर्ट्स पढ़ा, मित्सुबिशी पढ़ा और 1 लाख पढ़ा, मैं खुश, मैंने यार ₹1 लाख में स्पोर्ट्स गाड़ी मिल रही है। Wow. और जब Which मैं was this year? This must have been 2011, Okay. 10-11 हाँ. 10-11 के आसपास की बात होगी। तब मैंने पवित्र कुछ शुरू भी नहीं किया था, तब की बात है। बट अंकल के पास गया था मैं, जिस हालत में ये गाड़ी उनके घर पे पड़ी थी, मुझे लगता है इस गाड़ी का प्रेत या इसकी आत्मा ही थी जिनसे वो छुटकारा चाहते थे। तो वो जिस दिन मैं आया, उनकी आंखों में मैंने देखा कि कोई आया है ये गाड़ी खरीदने, मेरे करण अर्जुन कोई- आ गए। कोई पैसे देके मुझसे ये गाड़ी ले जा रहा है। मैंने उनको बोला कि अंकल 1 लाख रुपए हैं, मैं थोड़े मतलब आपको अभी थोड़े इतने दे देता हूँ, 1-2 दिन में दे दूंगा। उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तू बस ले जा। जा सिमरन जी ले अपनी फिर मैंने जिंदगी। 2-3 दिन में उनको पूरे पैसे करके दिए, और दोबारा उन्होंने मेरा कभी फोन नहीं उठाया, कि मैंने पूछने की कोशिश भी अगर की हो कि क्या प्रॉब्लम है, तो हाँ। फोन नहीं उठाया। क्रेजी। मैं बहुत ज्यादा। तुम्हें एक और, सॉरी यार, अब और कहानियां याद आ रही। तुम्हें पता मैं क्या करना चाहता था लैंसर के साथ? श्योर। भाई मेरे
भाई ग्राफिटी नहीं, नहीं तो Do tell, do tell. मेरे को नया नया नई नई गाड़ी आई थी और उसमें था ना मित्सुबिशी स्पोर्ट्स है भाई, हाँ. लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, हाँ. तो स्पोर्ट्स जैसी दिखनी चाहिए। हाँ. अब स्पोर्ट्स जैसी दिखेगी कैसे, दिखती तो है नहीं। हाँ. तो सबसे पहले पहले मैं गया एक एक पेंट कराने वाले के पास, मैं बोला इसको लाल पेंट कर दो, ठीक है। तो उसने बोला भाई बिल्कुल कर देंगे, 70,000 रुपए लगेंगे। हैंड के टके 1,00,000 रुपए की तो गाड़ी है, तू 70,000 रुपए का पेंट कर रहा है, सस्ता वाला कर। तो उसने 7,000 रुपए वाला किया। 70 से 70 से 7,000 वाला पेंट। हाँ. वो पेंट मेरे को लग रहा है चूना ही लगाया था उसने भाई, Of course. वो चूना लीपा पोती करके थोड़ा सा मेरे को लग रहा है पोस्टर कलर लगा के छोड़ दिया उसने। हाँ. बट जिस दिन वो कलर वलर होके आई थी उस दिन मुझे पहले दिन बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने बोला इसको स्पोर्ट्स गाड़ी बनाते हैं अपन। हाँ. मेरे यार दोस्तों से बात कर रहा था मैं, और आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर भाई, एक वो गाड़ी आती थी फ्लाइंग इंजन वाली ऐसे पुराने टाइम पे, तो मैं सोचता हाँ. था यार इस गाड़ी का दरवाजा अगर ऊपर खुलेगा तो कैसा लगेगा। हाँ यू मित्सुबिशी लैंसर 1998 लाख रुपए जिसमें से डंडा निकल रहा, उसका दरवाजा मुझे ऊपर खोलना है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरली मॉडिफिकेशन वाले के पास गया हूं बात करने के लिए कि सर अगर मुझे इसका दरवाजा ऊपर खोलना है तो कितने का लगेगा। टार्ज़न द वंडर कार पार्ट 2 हम आपकी मैं वही स्टोरी बनाने पे की बना कोशिश कर सकते रहा था, हैं. वही बनाने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं। फिर थोड़े दोस्तों ने चपेट अपट मारी और अक्ल दिलाई दिमाग में कि तू पागल हो गया है, तो ये क्या रहा भाई, हाँ. ये सब नहीं होता। तो हाँ, एंड देन गेट ऊपर से खुले नहीं खुले भाई, या खुले ही गए? ना खुल ही गए, वो नहीं खुले गेट। लूंगा लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसी गाड़ी लूंगा जिसका गेट ऊपर। श्योर हाँ, श्योर वही आई एम जरूर श्योर है। सबकी ब्लेसिंग्स है आपके पास. बिल्कुल वैसी सी कोई गाड़ी मजा आएगा। Okay, I'm gonna ask you a question जो आई एम श्योर आप थक भी चुके हो आंसर कर करके, बट आई एम श्योर सब जानना चाहते हैं. कब है? तुम मेरी मम्मी हो। मम्मी की तरफ से भी प्रेशर तो होगा बिकॉज यू आर ऑफ सिंधी. कोर्स है भाई, ऑफ कोर्स। तुम सिंधी हो? नो आई एम मारवाड़ी. तुम्हें तो ज्यादा होगा भाई। मैं तो फिर भी ठीक ठाक अरे हूँ। मेरा बाल विवाह हो चुका है. नहीं मजाक 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 मजाक. योर किड तेरा हो चुका है सब आई एम बता। जन्म सिद्ध सिंगल. तू एक बार देख, पूछ मम्मा से। मैं सिंगल हूँ. नहीं मुझे लगता है कि करवा दिया होगा, तेरा मांडा वांडा हो गया है, नहीं यार. किसी गुटखा फैक्ट्री में हो गया है। तौबा तौबा. मैं ऐसा लग रहा है मुझे नहीं पक्का। बट आई एम But श्योर of course प्रेशर तो होगा ना. ऑफ कोर्स है भाई, प्रेशर क्या, प्रेशर कुकर है पूरा का पूरा सर पे। बट क्या करूं उसका मैं, कोई नहीं मिली. सीधा तीर ही मार रही हो। नहीं है क्या तुम्हारे पास, इतने सिंगल हो, कोई नहीं मिली क्या? इस लायक भी नहीं हो क्या तुम कि तुम्हारा रिश्ता, अरे रिश्ता नहीं, ओ शादी नहीं, अरे शे। ओके रैपिंग अप. अब मैं आपके साथ गेम्स खेलने वाली हूँ, थोड़ा आपका मूड अच्छा करने वाली सारी लड़कियां गेम्स ही क्यों खेलती है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़कियां गेम्स क्यों खेलती है, बिना गेम्स के कुछ करो यार। इट्स आवर फेवरेट हॉबी. आई सी प्लीज गो अहेड। मजा आता है हमें. प्ले भुआ चाचियों वाले काम करने में मजा आता है हमें. गो फॉर इट। ओके रैपिड फायर. वन थिंग अबाउट सेलिब्रिटी लाइफ जो पब्लिक को बिल्कुल समझ नहीं आती. कि हम भी नॉर्मल इंसान है भाई, जेन्युइनली नहीं समझ आते। हम उतने ही नॉर्मल, उतने ही पगलेट और सारे शब्द अपशब्द ही आ रहे हैं मुंह में। बोलिए आप समझ हम सकते बीप हो। कर देंगे. बीप कर देना कि हम सब उतने ही पागल, बकैत और हर इंसान की तरह वी आर एब्सोल्युटली नॉर्मल पीपल यार। हमें कुछ फर्क नहीं है, आप में और हमें कोई फर्क नहीं है। बस हमारा काम वो है जो दुनिया देखती है, हाँ, और दुनिया के पास हक है हमारे बारे में बात करने का, या हमारी लाइफ को चीर फाड़ करने का, क्योंकि दैट्स अ चॉइस दैट वी हैव गिवन। या बट उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ जो अलग हो। इंडस्ट्री में टैलेंट ज्यादा मैटर करता है या नेटवर्किंग? ऑलवेज टैलेंट, ऑलवेज। But lately, because of social media, networking is taking a part, you know. I mean, networking has always been a very, very important part of our industry. And I wouldn't say that that's a skill set जो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी important है। लेकिन क्या सिर्फ नेटवर्किंग करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो? मुझे नहीं लगता। Not at all, yeah. Absolutely not. It works at a level. इसके आगे नहीं काम कर सकता. हाँ मतलब it can get you into the right rooms, but you have to Yeah. perform in those rooms. Sure. It can get you the right opportunity, but you have to encash that opportunity. And if you're not skilled enough to encash the opportunity, you'll not be able to make it. Absolutely. So I think skill set is what I would go with. Who is the most dramatic person in your friend circle? Like बात करते ही
And we have sensed it till now. मोस्ट ड्रामेटिक इन माय फ्रेंड सर्कल। वैसे ड्रामेटिक तो ये लड़कियां भी बहुत हैं यार, मतलब प्रियंका क्रिस्टू बहुत ड्रामेटिक है, हाँ, बहुत ड्रामेटिक है। About? लाइफ इन जनरल ड्रामा अच्छा लगता है यार, मतलब हाँ। well they women rightfully so, ड्रामा तो मतलब तुम्हारा हक है यार, मतलब you guys जन्नत का अधिकार own है हमारा। own that space, Yeah. but yeah I think है Okay. लाइफ में ड्रामा नहीं हो तो उनको मजा नहीं आता, हमें भी नहीं मजा आता, मुझे भी नहीं मजा आता, मुझे भी ड्रामा अच्छा लगता है, उनके इर्द गिर्द रहता हूँ तो सारा ड्रामा देखते एंटरटेनमेंट बढ़िया चलता रहता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब ये लड़कियों का ग्रुप है, यहाँ से तुम्हें भी गॉसिप मिलती होगी ना बहुत बहुत सारी। सारी बहुत गॉसिप मिलती है, हाँ। मैं अगले दिन भूल जाता हूँ, ये सच बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यू कैन आस्क दिस टू ऑल माई फ्रेंड्स, दे विल टेल यू कि इसको कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ मुझे जेन्युइनली मेरे दिमाग में उतनी स्पेस ही नहीं है कि I इन think सारी, you're a great friend that way. आई एम अ वंडरफुल फ्रेंड, मुझे मेरे दिमाग में इतनी, मेरा बैंडविड्थ ही नहीं है कि इन सारी चीजों के लिए कोई जगह हो, वो मैं रखता ही नहीं दिमाग में, रख ही और नहीं यार, पाता। तब तुम्हें ड्रामा कैसे पसंद है अगर तुम्हें याद ही नहीं रहता है तो? मोमेंट में ड्रामा, अब तो मुझे यहाँ पे बैठ के बताए कि तुझे पता है कि सुने तेरा, मैं बताती हूँ इसके अरे साथ तुम्हें क्या हुआ। हुआ? हाँ तो मैं सुनूंगा, बता क्या हुआ क्या हुआ, फिर तू बताए कि मुझे 5-10 मिनट के लिए बढ़िया लगे, मैंने क्या बात बताई तूने, मैं बाहर निकलूंगा भूल जाऊंगा। इस मोमेंट का एंजॉयमेंट है ना वो, Okay. इस मोमेंट में अगर एंजॉयमेंट हो रहा है तो क्यों नहीं भाई। Last thing that made you genuinely emotional. मम्मा Tissues? यार, मतलब टिश्यू तो क्या क्या ही, बट मम्मा, अभी हम कल परसों घर पे बैठे हुए थे और ऐसे ही हमारी टीम आई हुई थी एंड दे वर आस्किंग मम्मा ऑल्सो फ्यू क्वेश्चंस कि मम्मा प्लीज आप व्हाट इज इट लाइक, तो मम्मी इज वेरी फन ऑल द टाइम, शी इज फुल ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। तो किसी ने तो पूछ लिया कि अच्छा ये वहाँ जा रहा है और इसके साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया, कोई ऐसा बड़ा स्टंट, तो क्या मतलब क्या करोगे आप, ऐसा ऐसा अजीब सा कोई सवाल पूछ लिया जो माँ से नहीं पूछना चाहिए। टीम वालों, माँ से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो हमारी टीम ने पूछे हैं। तो इमीडिएटली जैसे ही वो सवाल आया, मेरी मतलब मम्मा रो दी एंड दैट मोमेंट बिकेम सो, आई वाज लाइक यार मम्मा यार ये तो मजाक है, कुछ नहीं होगा मेरे को वैसा। सो आई थिंक दैट वाज, एंड इट वाज वेरी रीसेंट, लाइक Yeah. एज ऑफ जस्ट yesterday. Oh, So that's how I remember it so clearly. But that's so cute ना। I know. माँ का दिल है वो, हो ही जाता है, पिघल ही जाता है। Mm. One celeb जिनकी Instagram personality and real personality एकदम different है। प्रियंका तालुकदार। Why is that? क्यों है? क्यों है? हमारी ये दोस्त आपको इंस्टाग्राम पे दिखती हैं, and she's wonderful at her job. She Yeah. does she's one of the best fashion, travel, lifestyle, content creator that there is. She's the OG. Okay. बहुत बढ़िया करती है। लेकिन रियल लाइफ में वो उतनी ही छेगली है, वो उतनी ही पागल है, वो उतनी ही दिमाग से पैदल है। तो जो आप, जब वो मुंह खोलती है और जब उसके साथ बखैती होती है हमारी, तो उसको देखकर और इन फोटोज को देखकर लगता है कि ये दो अलग अलग जिंदगियां हैं। कि वो नॉर्मल बात करी, बैठा खाना ला, ये हो गया वो हो गया, सडनली आपने कैमरा ऑन किया, उसका ये ऊपर चालो और What? ऐसे करके, गाइस, ओ माय गॉड, दिस इज द मॉर्निंग, दिस इज माय रूटीन, यू वुड लाइक माय कॉफी करके यूं पिएगी। और जब बैठी रहेगी तो यूं पूरा ढचका था, और बता क्या हाल चाल है तेरे, ऐसी रहती है। आधी तो मेंढक है वो बैठे हुए। तो वो जो बनती है इतनी वो हॉट, मेरे को लगता है कि ये सब कैट मोह फिशिंग, माया है। सब मोह माया भाई, कैट फिशिंग है। अंदर का टॉमबॉय बाहर आ ही जाता है ना। What is छेगली? I've heard this new word. Is it a Sindhi पागल thing? है। No, I think it's a Gujarati word if I'm not wrong. छेगली is a Gujarati word. I think Okay. छेगली means थोड़ी दिमाग से पैदल, पागल। Okay. पागल को छेगली बोलते हैं। One thing fans assume about you that's completely wrong. मतलब हम सही assume कर रहे हैं क्या सब? पता नहीं आप अज्यूम क्या कर रहे हो, मुझे वो भी नहीं पता। तो मैं बता नहीं सकता कि आप मेरे बारे में क्या अज्यूम कर Don't रहे you read about yourself? Google हो। about you? नो, Really? नहीं यार, मतलब मैं कमेंट सेक्शन भी ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं घुसता ही नहीं इन सब Wow, चीजें। you're a very secure person like that. थैंक यू। I guess। I know. मतलब I'm sure नहीं यार, you would- इनसिक्योरिटी तो मुझे भी होती है, मैं भी ओवरथिंक कर जाता हूँ। हाँ. बट इस मामले में नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं जरा जान के देखूं। But ऐसा कभी लगा कि अरे ये तो मेरे बारे में है भी नहीं तो क्यों बोल रही है? नहीं, Something different you've heard about yourself. नहीं Really? हुआ होगा, आई एम नॉट हाँ. आई कांट रिकलेक्ट, आई एम Okay. श्योर हुआ होगा कुछ ना कुछ ऐसा, मुझे लगा कि ये क्या फुद्दू बात है। बहुत ही बार हुआ होगा, कई बार ऐसे किसी प्रोजेक्ट को लेकर हो जाता है कि ही इज कमिंग अप एंड डूइंग दिस, जबकि मैंने उनसे कोई बात भी नहीं की होती है और मेरा नाम यूज हो रहा होता है। तो आई थिंक ऐसा सब हुआ है। Okay. पर्सनल लाइफ में भी काफी रैंडम लोगों के साथ मुझे लिंक अप कर दिया गया है।
कुछ लिंकअप से तो मैं खुश भी था, मतलब क्या बात कर रहे हो गाइस, थैंक यू मैम, थैंक कौन यू। से है वो लिंकअप्स? वो कैसे बताऊं तुम्हें, वो रहने दो। कुछ को देख के मुझे लगा सच में तुम्हें लग रहा है, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। और फिर जिसके साथ लिंकअप हुआ उसको भी फोन करके बोला, तू देख रही है ये बातें चल रही है, वी लव इट। और सामने से आता है, सुन साथ में कोलैब करते हैं, जल्दी जल्दी पैसे कमाओ पैसे कमाओ। बट कोई एक कोलैब सुन के हंसी आई होगी कि इसके साथ कोलैब किया है, मुझे लिंकअप किया है। नहीं, रियली आई एम सारे सुरभि ज्योति के साथ आपको कंपेयर किया जा वो तो करते ही थे। अब वो तो आज नहीं तो कल वो तो खैर सबको पता चलना ही था। That Sumit and her now husband then boyfriend, Yeah. they've been together for 7 years, 8 years. Oh. Even when we became thick and we started knowing each other, उसकी भी कई सालों पहले से। Uh-huh. तो वो सब तो चीजें कभी मैटर ही नहीं करती यार, वो कभी प्रॉब्लम ही वो सोचता भी नहीं उस मामले में, बिकॉज हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा है। बट हंसी आती होगी ना देख के, ये दोनों रिलेशनशिप में और मैं सिंगल हूँ और मेरे को इसके साथ लिंकअप किया भाई जा ये रहा है। दोनों मतलब जब मुझे क्रिस्टल के साथ भी जब ऐसे कंपेयर करते हैं तो हंसी तो आती है उन दोनों को। तुझसे कंपेयर तेरे साथ, मुझ पे बहुत हंसते हैं दोनों। तो आई गेस यार, In a relationship, dash is the most essential thing. What is your dash? I think crystal clear communication. That was very crisp. How? Very crystal clear communication. अबे Okay. चल, क्रिस्टल मतलब वो वाला क्रिस्टल गलत। उसका भी भाई तुम्हें पता था, उसका आपने भी थाली में परोस के मुझे बोला कि देखो crystal clear. तो वो क्या ही बताऊं तुम्हें। एनीवे, क्रिस्टल वाला मतलब crystal clear, it's a metaphor. Crystal clear communication. जिसको जो समझना है समझ लो, कोई बात हम्म, नहीं. I think Ever, that's most important. yeah. Ever stalked someone from a fake account? Do you have a fake account? No, I want one. I You should make have one. It's so I fun. should make one, no? Yeah. Yeah. So ever stalked someone from your real account? Who's the last person you stalked? I don't know, someone that I must have liked on Instagram कि यार ये तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है। Of course हम सब स्टॉक करते हैं किसी ना किसी को। It's never Never ending cycle. it's a never ending cycle. मतलब वो Yeah. stalking in the sense वैसा सा होता है कि oh wow, that's a beautiful video, oh, that's a beautiful picture, let me see who this person is. Yeah. I'll go click on that person and then see a bunch of their content and then go back, see somebody else. Okay. वैसा। Yeah, I've Perfect. done that a lot. What is that one thing you learned from your past relationships which you will never repeat? It's quite an intense and quite a long answer for that, but I've had wonderful relationships. I've had beautiful partners, people who have uplifted me. I'm pretty much I owe my sanity, my spiritual existence to them. I am the man. I wouldn't be half the man if I wasn't with these people. So they've taught me so many things. And if you ask me if there is any one thing that I would not want to repeat, no, absolutely not. I would, if I was given the chance to do my life, I would do it exactly the same way all over again. Wow. Because there's no point in having regrets, because regrets will just no regrets whatsoever. Perfect. Beautiful to hear that. Hi guys, this is Ritvik Danjani. You're watching me on RVCJ here, movies, and do like, share, and subscribe.